Good morning, dear students. Today we will revise the chapter General Principle and Processes of Isolation of Elements. In this chapter, we are to study the metallurgy of different metals. Means how to extract a metal from its ore. So what is ore? Ore is that mineral by which we can obtain the metal conveniently and profitably. So it basically there in three steps. Three steps में हम ore से metal को opt कर सकते हैं. The first step is the concentration process. The next step is to get the crude metal, and the last step is the refining of metal. So today we will discuss the first part of the process, that is concentration of ore. So let's see the ore that we get from earth. It is having a lot of impurities. It is there in the form of a stone. So it is to be pulverized first. Means सबसे पहले आपको ओर का क्या करना होगा, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, बाय विच इट्स एक्टिविटी वुड बी इंक्रीज्ड, क्योंकि ओर का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. सो after crushing and grinding process, that is to be done in the ball mill or stamp mill, and the process is known as the pulverization process. So after this process we have to go through the main process, that is known as the concentration process, and the concentration process is also known as benefaction or dressing of ore. तो concentration process को हम 4 methods से कर सकते हैं. Depends on the nature of the ore के which process we are to opt for. So there are 4 methods. The first one is the gravity separation method, electromagnetic separation method, froth flotation method, and leaching process. They all are having different principles. So gravity separation method को हम hydraulic separation भी कहते हैं, और gravity separation method दो तरीके से किया जाता है. The old method was the Wilfley table, and this method, modern method, is the hydraulic classifier that we are to use for the gravity separation process. So let's discuss what is the principle behind it. इसके behind जो principle है, that is there कि इस method से हम ore से उन impurities को, basically we are to remove the siliceous impurities from the ore during this process. तो ये method इस बात पर depend करता है कि ore और impurities की densities में क्या difference है. That the impurities must be less dense, or you may say they are lighter in nature, while the ore must be heavier in nature. तो उस केस में हम इस मेथड का यूज करते हैं. बेसिकली इस मेथड में क्या किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोलिक क्लासिफायर आई हैव टोल्ड यू कि हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, वी हैव टू यूज अ करंट ऑफ वाटर, और हम ऊपर से ओर को we'll fall down the ore in the classifier, और नीचे से flow of water would be there, by which जो light impurities हैं that would be removed from uppermost hole, and the ore that is heavier in nature would be collected at the bottom. So किस केस में यूज किया जाता है, जैसे Fe2O3 ore के फॉर्म में यूज किया जाता है, हेमेटाइट ओर में, जैसे Ag, Au, Pb, इन सारे केसेस में इम्प्योरिटीज को, यानी गैंग को, इम्प्योरिटीज को हम यहाँ क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं. तो गैंग को इससे रिमूव करने के लिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज किया जाता है. द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट. यहाँ पर या तो आपकी इम्प्योरिटीज या फिर ओर में से किसी एक को कैसा होना चाहिए नेचर में, मैग्नेटिक, और दूसरे को नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए. जैसे कि यहाँ मैंने 3 एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, दैट इज मैग्नेटाइट, पायरोल्यूसाइट, Fe3O4, MnO2 ore, in which these are the how they are in nature, cassiterite. These 3 are magnetic in nature, while impurities are non-magnetic in nature. So in this method what we are to do, we are to rotate 2 rollers on a belt, conveyor belt, और वहां पर हम क्या करते हैं, एक कन्वेयर बेल्ट का जो व्हील है वो मैग्नेटिक होता है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होता है. व्हेन यू पोर ओर ऑन दैट कन्वेयर बेल्ट, जो मैग्नेटिक ओर है या जो भी है, मैग्नेटिक इम्प्योरिटी भी हो सकती है, ओर भी हो सकता है, वो उस मैग्नेटिक रोलर की साइड इकट्ठा हो जाता है, और जो
हमारी इम्प्योरिटीज या फिर नॉन मैग्नेटिक ओर है वो अदर साइड कलेक्ट कर लिया जाता है. तो लाइक दिस वी कैन सेपरेट द ore to the impurity or to the gangue by electromagnetic separation method. Now the next is Froth flotation process. That is very important one. Let me tell you, आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का ये चैप्टर आता है जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कंसंट्रेशन प्रोसेस पर बेस होते हैं या फिर आपके रिफाइनिंग प्रोसेस पर बेस होते हैं. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कंसंट्रेशन प्रोसेस. आपको सबके प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए. बेसिकली वुड बी आस्क्ड फॉर द प्रिंसिपल्स. पर्टिकुलर एग्जांपल देके आपसे पूछ सकते हैं कि इसको किस मेथड से आप कंसंट्रेट करोगे. सो फ्रोथ फ्लोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनदर वन इज लीचिंग. लीचिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन दोनों को खास तौर पे आपको तैयार करना है. सो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है? सल्फाइड ओर के केस में यूज किया जाता है. SZNS, PBS. So in this case what we are to do, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल बिहाइंड इट इज दैट कि जो आपका सल्फाइड ओर होता है इट इज हैविंग द वेटिंग प्रॉपर्टी विद द ऑयल. ये ऑयल से वेट हो जाता है और जो इम्प्योरिटीज होती हैं सल्फाइड ओर में दे आर वेटेड बाय वाटर. सो इट इज दैट द डिफरेंस बिटवीन द वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड द इम्प्योरिटीज और द गैंग. सो यहाँ पर हम 4 थिंग्स का यूज करते हैं. वी आर टू टेक अ वाटर टैंक. इस वाटर टैंक में एक एजिटेटर लेते हैं जिससे कि हम एयर पास करते हैं. वी आर टू टेक द फ्रोथर. द फ्रोथिंग एजेंट दैट इज पाइन ऑयल. जब हम एजिटेटर के थ्रू एयर पास करते हैं और उस वाटर टैंक में जो हमारा सस्पेंशन है ओर और वाटर का उसको जब आप एजिटेट करते हैं तो इन दैट केस यू आर टू यूज फ्रोथर. और वो पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल, पाम ऑयल ले सकते हैं आप. तो दैट क्रिएट द फ्रोथ्स. तो इनको फ्रोथिंग एजेंट्स भी कह सकते हैं. दीज फ्रोथिंग एजेंट क्या करेंगे? यहाँ पर फ्रोथ डेवलप करेंगे. देयर आफ्टर एज आई हैव टोल्ड यू कि ओर सल्फाइड है हमारा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वेटिंग प्रॉपर्टी विद ऑयल. तो वो ऑयल के साथ वेट होने की प्रॉपर्टी होने की वजह से फ्रोथ के साथ लाइट होकर ऊपर आ जाता है और जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो टैंक में नीचे बैठ जाती हैं. The next thing that we have to use is collector. Collector जो है हमारा सोडियम इथाइल ज़ैंथेट है. इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट. तो इट वर्क्स लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कि हाइड्रोफोबिक पार्ट को अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट. और यू मे से इन दिस केस सोडियम इथाइल ज़ैंथेट क्या करता है? बेसिकली जो सल्फाइड के पार्टिकल्स होते हैं उनको स्टिक करने में काम में आता है उनको. और प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है? that it is having the hydrophobic as well as hydrophilic part. हाइड्रोफोबिक जो है वो हाइड्रोफोबिक के साथ और फिलिक जो है वो फिलिक के साथ जाता है. नेक्स्ट थिंग दैट वी आर टू यूज इज स्टेबलाइजर. बेसिकली व्हाट इज देयर, जब फ्रोथ डेवलप होते हैं तो आपको पता है वो वैनिश भी जल्दी हो जाते हैं. तो उनको उनकी प्रॉपर्टी को सिमिलर रखने के लिए यानी फ्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए फ्रोथ को हम किसका यूज करते हैं? क्रिसॉल या एनिलीन का यूज करते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दीज आर द थिंग्स बेसिकली जिनका हम यूज करते हैं. और बाय द प्रोसेस क्या होता है? फ्रोथ के साथ सल्फाइड ओर हमारा इकट्ठा हो जाता है जिसको फ्रोथ के साथ हम अलग कर लेते हैं और दूसरी चीज जो है हमारी इम्प्योरिटीज टैंक में नीचे बैठ जाती है. नाउ एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में डिप्रेसेंट का यूज क्या है या डिप्रेसेंट का यूज हम कहां पर करते हैं. बेसिकली बेटा इफ वी आर हैविंग 2 सल्फाइड ओर्स मीन्स, या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर सपोज मुझे गैलेना यानी PBS ओर में से जिंक सल्फाइड की इम्प्योरिटी को हटाना है, रिमूव करना है. सो बेसिकली इन सल्फाइड ओर हम यूज ही इस मेथड का करते हैं. बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये दोनों सल्फाइड हैं और इन दोनों की ही वेटिंग प्रॉपर्टी किसके साथ होगी? दैट वुड बी देयर विद द पाइन ऑयल. यानी वो ऑयल के साथ वेट हो जाते होंगे. तो हमें यहाँ क्या करना है? हमें इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करना है. और किसको रिमूव करना है? इम्प्योरिटी को. तो जिंक सल्फाइड के साथ हम किसी डिप्रेसेंट का यूज करते हैं जो कि यहाँ पर कौन है? सोडियम साइनाइड. और ये क्या करता है? सोडियम साइनाइड लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता लेकिन जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना जाता है दैट इज टेट्रासाइनोसोडियम जिंकेट. इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा एंड दैट वुड बी सोल्युबलाइज
इन द वाटर सॉल्युबल होकर, और लेड सल्फाइड जो है हमारा वो सेपरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द फ्रोथ बाय वेटिंग विद द फ्रोथ. सो लाइक दिस डिप्रेसेंट इज बीइंग यूज्ड. तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. द लास्ट मेथड इज द लीचिंग मेथड. लीचिंग मेथड के पीछे प्रिंसिपल क्या है? लीचिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि ओर को हम रिएक्ट कराते हैं किसी ना किसी एसिड बेस या किसी कंपाउंड के साथ, जिससे कि वो सॉल्युबलाइज हो जाए, यानी हमें ओर को सॉल्युबल बना देना है. एंड आफ्टरवर्ड वी कैन ऑप्ट द ओर सेपरेटेड बाय द गैंग. तो आपके यहाँ सिलेबस में हम लोगों ने लीचिंग प्रोसेस में दो प्रोसेसेस पढ़े हैं. एक तो बेयर्स प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिना यानी Al2O3 2S2O, Al2O3 2S2O, या फिर आप बॉक्साइट ओर कह सकते हैं. बॉक्साइट ओर से इंप्योरिटीज को सेपरेट करते हैं. द नेक्स्ट मेथड इज मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस. इस मेथड का यूज हम सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सारे केसेस में करते हैं, जिसमें हमारे सिलेबस में यहाँ सिल्वर और गोल्ड है. सो वी विल डिस्कस द टू प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से हम सॉल्युबलाइज करते हैं. सो द फर्स्ट मेथड इज द बेयर्स प्रोसेस. बेयर्स प्रोसेस में आपको क्या लेना है, बॉक्साइट ओर लेना है. एज आई हैव टोल्ड यू, फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2S2O. इसको आपको रिएक्ट कराना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से. अराउंड 45% NaOH सोल्यूशन आपको लेना होता है, एंड यू आर टू हीट इट at 473 to 523 Kelvin, 35 to 36 bar pressure you are to apply. तो क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है. यानी अब हमारा ओर किस में कन्वर्ट हो गया, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया. दैट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसको आप कॉमनली NaAlO2 फॉर्मूला से जानते हैं, क्योंकि इसको जब आप हीट करोगे तो दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू NaAlO2 प्लस वाटर. Otherwise that is sodium tetrahydroxy sodium aluminate or sodium tetrahydroxy aluminate. So NaAlOH whole 4 के फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है. Then you are to pass कार्बन डाइऑक्साइड to it. क्यों? क्योंकि हमें इसमें से इम्प्योरिटीज को हटाकर अब प्योर एल्यूमिना, यानी विदाउट गैंग हमें एल्यूमिना जो है वो ऑप्ट करना है यहाँ पर. लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं, इसमें इम्प्योरिटी होती है Fe2O3 की, TiO2 की और SiO2 की. अब क्या होता है, ये हमारा जो बॉक्साइट ओर था वो एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जबकि Fe2O3 और TiO2 की इम्प्योरिटीज कैसी रह जाती हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में रह जाती हैं, जिसको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं. नाउ SiO2 वुड ऑल्सो बी देयर. तो ये SiO2 भी NaOH के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो NaSiO3 बना देता है. आगे हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में सोडियम सिलिकेट. सोडियम सिलिकेट इज अ स्लैग जो क्या करेगा, ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा, आप अलग कर सकते हो. नाउ व्हाट वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से इट वुड बी गेट न्यूट्रलाइज्ड, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, एंड वी वुड बी गेटिंग द प्रेसिपिटेट ऑफ Al2O3.XS2O, जिसको आप फर्दर हाई टेम्परेचर पर हीट करके क्या ऑप्ट कर सकते हैं, यू कैन ऑप्ट एल्यूमिना. सो बॉक्साइट ओर से एल्यूमिना ऑप्ट करने के लिए इस मेथड का बेसिकली यूज किया जाता है. सो वी वुड बी गेटिंग Al2O3 plus XH2O. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड, दैट इज मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस. जैसे कि मैंने आपको कहा कि सिल्वर और गोल्ड आपके सिलेबस में है, एक ही तरीके से रिएक्शन होती है. मैंने यहाँ आपको सिंपल एक सिल्वर का रिएक्शन दिखाया है. सिल्वर और गोल्ड हमें पता है बेसिकली नेटिव स्टेट में हमें अर्थ में मिलता है, तो सिल्वर वुड बी इन नेटिव स्टेट. यहाँ आपको डाइल्यूट सोडियम साइनाइड सोल्यूशन से एयर की प्रेजेंस में इसको एजिटेट करना होता है. सो इन प्रेजेंस ऑफ एयर व्हाट विल हैपन, सिल्वर वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज डाइसाइनोसोडियम अर्जेंटेट. So you would be getting this into the soluble form, you would be getting NaOH here. तो अब हमारा सिल्वर जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आप फिल्टर आउट कर सकते हो, सेपरेट हो जाएंगी. नाउ व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू ऑप्ट इट अगेन. हमें ये सिल्वर वापस चाहिए इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बाद.
so we are to react it with a more electropositive metal. तो जिंक के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और यहाँ पर जिंक क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है. किस फॉर्म में ट्रैप हो जाता है, इट विल गिव Na2ZnCN4, दैट इज टेट्रासाइनोसोडियम जिंकेट. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इस कॉम्प्लेक्स में से सिल्वर को रिड्यूस करेगा. वी वुड बी गेटिंग Ag ऑल्सो, एंड दैट वुड not be having the impurities with it. Impurities remove हो जाएंगी. So like this, these are 4 methods of concentration by which we can concentrate the ore. अब इस concentration process के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, now we are to get the crude metal. तो basically जो भी हमें यहाँ पर metals मिले हैं, that is there in the form of their sulfide, their carbonate, their hydroxide, their hydrated oxides also. So हमारा पहला स्टेप क्या होता है, we are to convert, to get it reduced, we are to convert it into its oxide, क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन इजी होता है. तो उस रिडक्शन प्रोसेस में जाने से पहले हमें क्या करना होगा, हमारे ओर्स को ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. सो नाउ वी आर गेटिंग द कंसंट्रेटेड ओर, एंड टू गेट द मेटल ऑक्साइड वी आर हैविंग 2 प्रोसेसेस, द रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन प्रोसेस. रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस के लिए भी आप, ये भी डिपेंड किस बात पर करता है कि हमारा ओर क्या है. रोस्टिंग प्रोसेस बेसिकली किस केस में किया जाता है, जब हमारे सल्फाइड ओर्स होते हैं. व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, कि ओर यहाँ पर हीट किया जाता है बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस. रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर ओर को मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जिससे कि हमारे सल्फाइड ओर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड SO2 गैस वुड बी रिमूव्ड. द अदर थिंग्स दैट हैपन इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कि जो हमारा ओर है वो पोरस हो जाता है. पोरस हो जाने का मतलब अगेन सरफेस जो है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है. उसमें से मॉइस्चर सारा रिमूव हो जाता है. जितने भी वॉलेटाइल ऑक्साइड्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके. जैसे कि नॉन वॉलेटाइल हमारी इंप्योरिटीज थी, मान लीजिए सल्फर की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड एंड लाइक द आर्सेनिक ऑक्साइड in the similar manner P2O5 would also be formed. So they would be removed, and हमारा जो मेन प्रोसेस होता है यहाँ पर वो सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. वी हैव टेकन 3 एग्जांपल. ZnS का एग्जांपल लिया है, जिंक ब्लेंड दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव जिंक ऑक्साइड. इन द सिमिलर मैनर कॉपर ग्लांस का एग्जांपल लिया है मैंने, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस ऑक्साइड एंड SO2. इन द सिमिलर मैनर गैलेना भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, PbO में कन्वर्ट हो जाता है, और SO2 would be removed. Now what about the calcination process? यहाँ पर डिफरेंस ये है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस भी सेम रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है, बिलो फ्यूजन टेम्परेचर होती है, बट इट वुड बी देयर इन एब्सेंस ऑफ एयर. यहाँ पर एयर की जरूरत नहीं है, तो इट वुड बी देयर इन एब्सेंस ऑफ एयर. किन केसेस में होती है, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के केस में ये किया जाता है. रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर सेम. जो हमारी नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं वो वॉलेटाइल ऑक्साइड बना के निकल जाती हैं, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और पोरस हो जाता है. इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर मेन प्रोसेस क्या है, जो हमारा कार्बोनेट है ऑन हीटिंग, इस टेम्परेचर पर हीट करने से ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाता है. सो वी वुड बी गेटिंग द ऑक्साइड और, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, यू नो, दैट वुड बी एस्केप आउट. The next example that is there of limestones example, the next I have taken is malachite ore, CuCO3.CuOH hold twice. So in this case, on heating, it would be converted into CuO, water and carbon dioxide. So till the time, dear students, you all revise all these things, the concentration of ore, and tomorrow we will continue with the same chapter to the next topic. Thank you.